السلام علیکم. دیسی ٹی وی یو ایس اے کے ساتھ میں ہوں شائستہ جلیل. نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر. امریکہ میں جارج فلائیڈ کی ہلاکت اور سیاہ فاموں کے ساتھ نسلی امتیاز کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیٹل کے مظاہرین کو ہٹانے کے لیے فوج بلانے کی تنبیہ کر دی. صدر ٹرمپ کے بیان پر سیٹل کی میئر کا شدید رد عمل. کہا مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال غیر آئینی ہوگا. امریکی فوج کے جنرل مارک ملے نے ٹرمپ کے ساتھ تصویر بنوانے پر عوام سے معذرت کر لی. ان سے غلطی ہوئی. صدر ٹرمپ کے ساتھ تصویر نہیں بنوانی چاہیے تھی. امریکہ کی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کا دور غلامی کی یادگاریں ہٹانے کا مطالبہ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا صاف انکار. تاریخ چھیڑنے کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کیمپین کی تیاریاں. ریلی میں شریک ہونے والے افراد کو اگر کورونا وائرس ہوا اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. ریلی میں شریک ہونے سے پہلے حامیوں کو ایک معاہدے پر دستخط کرنا ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے دور حکومت کا دوسرا وفاقی بجٹ پیش کر دیا. پاکستان کی قومی اسمبلی میں 2020 اور 2021 کے لیے 71 خرب 13 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا. حکومت کا کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کا اعلان. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر نے چین، ترکی اور روسی حکومت کے ہزاروں اکاؤنٹ ختم کر دیے. ٹویٹر کا کہنا ہے کہ یہ اکاؤنٹ حکومتوں کے لیے پروپیگنڈا کرنے، غلط معلومات پھیلا رہے تھے. Which story can I tell? Which pain here can I say? بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم جاری. کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے امریکی گلوکارہ کی آواز میں ترکی نے نغمہ جاری کر دیا. سوشل میڈیا پر مقبول. اب خبریں تفصیلات کے ساتھ. امریکہ میں جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ کئی ہفتوں سے جاری ہے. امریکہ کے کئی شہروں میں شہری سراپا احتجاج ہیں. مظاہرین پولیس ایکٹ میں تبدیلی چاہتے ہیں اور سیاہ فاموں کے ساتھ ہونے والے نسلی امتیاز کا خاتمہ چاہتے ہیں. وہیں سیٹل اور واشنگٹن میں بھی احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. واشنگٹن اور سیٹل کے کئی علاقوں میں مظاہرین نے پولیس کی گاڑیوں کو پیٹرول بم سے نشانہ بنایا. درجنوں گاڑیاں جل کر راکھ ہو گئیں. مظاہرین کی جانب سے کئی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جا چکا ہے. سیٹل میں کشیدگی دیکھنے میں آئی، جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مظاہرین کو تنبیہ کی ہے اگر احتجاجی مظاہرے ختم نہ کی تو فوج بلا لیں گے. امریکی صدر کے اس بیان پر سیٹل کی میئر نے صدر ٹرمپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. سیٹل کی میئر کا کہنا ہے کہ مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال ایک غیر آئینی عمل ہے. We are a passionate city. We demand justice. We are at the forefront of change. And I will not allow anyone to distract our city from the work that has to be done and will be done. Demanding we do better as a society and providing true equity for communities of color is not terrorism. It is patriotism. The right to challenge authority and government is fundamental to who we are as Americans. As many of you saw the result of the photograph of me at Lafayette Square last week, that sparked a national debate about the role of the military in civil society. I should not have been there. My presence in that moment and in that environment created a perception of the military involved in domestic politics. As a commissioned uniformed officer, it was a mistake that I have learned from.
and I sincerely hope we all can learn from it. We who wear the cloth of our nation come from the people of our nation, and we must hold dear the principle of an apolitical military that is so deeply rooted in the very essence of our republic. अमरीकी आर्मी के अहम जनरल सर ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के बाद एक चर्च में होने वाले फोटो सेशन में शरीक हुए। तस्वीर मंजर आम पर आने के बाद मार्क मिले ने अमरीकी अवाम से माफी मांगी है। अमेरिका में होने वाले एहतजाजी मुजाहरों के दौरान 1 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने चर्च का दौरा किया था। वहां पादरियों के साथ तस्वीर बनवाई थी। मार्क मिले भी सर ट्रंप के साथ मौजूद थे। मार्क मिले ने अवाम से माजरत करते हुए कहा है कि मुझे वहां मौजूद नहीं होना चाहिए था। इससे तासुर ये जाता है कि फौज मुल्क की दाखिली सियासत में मुलव्विस है। अमरीकी फौज को दाखिली सियासत से अलग रहना चाहिए। वो आइंदा एहतियात करेंगे और फौज के आला अहदेदारों को हिदायत करेंगे कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे फौज के मुल्क की सियासत में मुलव्विस होने का तासुर पैदा हो। This afternoon sent a letter to the president expressing concern about the increased militarization and lack of clarity that may increase chaos. I'm writing to request a full list of the agencies involved and clarifications of the roles and responsibilities of the troops and federal law enforcement resources operating in the city. पुलिस तहवील में हलाक होने वाले सियाह फाम अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद अमेरिका भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। वहीं अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने मुतालबा किया है कि जेफरसन डेविस और मजीद इस जैसी कॉन्फेडरेट शख्सियात के मुजिस्मों को अमरीकी दारकूमत के कैपिटल हिल से हटा दिया जाए। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खत में नैन्सी पेलोसी ने मुतनाज़ा मौजू पर सेनेट की मुतलका कमेटी को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कॉन्फेडरेट मुजिस्मे अमरीका की मिरास नहीं, ये नफरत की अलामत है, जिन्हें फौरी तौर पर हटा दिया जाए। नैन्सी पेलोसी के इस खत के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी मुजिस्मे को हटाने से साफ इनकार कर दिया है। कॉन्फेडरेट जनरलों के नाम पर कायम फौजी अड्डों के नाम तब्दील नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जनरलों के नाम से मंसूब फौजी अड्डे एक अजीम अमरीकी विरसे का हिस्सा हैं और आजादी की अलामत हैं। अमरीका ने अपने हीरोज को इन अड्डों पर तरबियत दी और इन्हें वहां तैनात किया। 2 आलमी जंगें जीती। मेरी इंतजामिया इन शानदार और मारूफ फौजी अड्डों का नाम तब्दील करने पर दुनिया की अजीम तरीन कौम की हैसियत से हमारी तारीख के साथ छेड़छाड़ की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमारी फौज का एहतराम किया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले सदारती इंतखाबात के लिए तैयारियां कर रहे हैं। ट्रंप जल्द ही इलेक्शन कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। 4 रियासतों ओक्लाहोमा, फ्लोरिडा, एरिजोना और शुमाली कैरोलिना से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इंतखाबी रैली में शरीक होने वाले अफराद कोरोना से मुतासिर हुए तो इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। बताया गया है कि सदारती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम में शिरकत करने वाले सदर ट्रंप के हामी पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप तस्लीम करते हैं कि अवामी मकामात पर जहां लोग मौजूद हों वहां कोरोना वायरस फैलने का खतरा मौजूद है। अगर कोई ट्रंप की रैली में शिरकत करना चाहता है तो वो तमाम इन खतरात को कबूल करे, किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। अमेरिका में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात में तेजी से इजाफा सामने आ रहा है। अमेरिका में अब तक 2 मिलियन से जायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। 1,13,000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। समाजी राब्ते की मशहूर वेबसाइट ट्विटर ने तुर्की, रूस और चीन की हुकूमत के हजारों अकाउंट खत्म कर दिए हैं। ट्विटर का कहना है कि चीन, रूस और तुर्की की गवर्नमेंट से मुंसलिक 1,70,000 से जायद ऐसे अकाउंट को बंद कर दिया गया है जो अपनी हुकूमतों के लिए प्रोपेगेंडा करने और गलत मालूमात फैलाने का काम कर रहे थे। ट्विटर का कहना है कि ज्यादातर अकाउंट चीन से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे अकाउंट नागदीन पर हमला करने और अपनी हुकूमतों के लिए प्रोपेगेंडे के तौर पर काम कर रहे थे, जो प्रोपेगेंडा फैलाने, गलत मालूमात की तशहीर करने और हुकूमत पर तनकीद करने वालों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे।
पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत का दूसरा सालाना वफाकी बजट पेश कर दिया। 2020 और 2021 के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने 34 खरब 37 अरब खसारे का बजट पेश किया है। पाकिस्तान के वफाकी वजीर सनत व पैदावार हम्माद अजहर ने कौमी असम्बली के इजलास में बजट तजावीज पेश की। नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जाएगा। दिफाई बजट में 11.8% का इजाफा किया गया है। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस और दीगर आफतों की रोकथाम के लिए रकम मुख्तस की गई है। खुसूसी तरक्याती प्रोग्राम वज़ा किए हैं। पाकिस्तान के वफाकी बजट बराए 2020-2021 में ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र भेजने में सहूलत देने के लिए टैक्स खत्म करने की तजवीज़ दी है। तरसीलात ज़र को निकलवाने या मुंतकिल करने पर किसी किस्म का टैक्स नहीं लिया जाए। हम्माद अजहर का कहना था कि समंदर पार पाकिस्तानियों के सेविंग बिल्स में सरमायाकारी के फरोग के लिए ये तजवीज़ दी गई है कि ऐसे अकाउंट्स को टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया जाए। वफाकी वजीर सनत व पैदावार हम्माद अजहर ने कौमी असम्बली के इजलास में बजट पेश किया। तमाम अरकान असम्बली समेत वजीर आजम इमरान खान भी मौजूद थे। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन जमातों ने तनकीद की। अपोजिशन अरकान बैनर साथ लेकर आए थे। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान हुकूमत मुखालिफ बैनर लहराते रहे। शदीद हंगामाराई देखने में आई। बजट खसारा 2300 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुका था। नाकस पॉलिसियों और बद इंतजामी के बायस बिजली का गर्दिशी कर्जा 485 अरब रुपए की अदायगी के बावजूद 1200 अरब रुपए की इंतहाई हद तक जा पहुंचा था, जिसका बोझ अवाम पर डाला गया। सरकारी इदारों की तामीर नौ ना होने से इनको 1300 अरब से जायद के नुकसानात का सामना था। स्टेट बैंक से बेतहाशा कर्जा जात लिए गए, जिससे बैंकारी निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान की मिसाली क़यादत में अगस्त 2018 में एक नए दौर का आगाज़ हुआ। हमने मुश्किल सफ़र से इब्तदा की और मईशत की बहाली के लिए अपनी काविशें शुरू की, ताकि मीडियम टर्म में माशी इस्तेहकाम और शरह नमू में बेहतरी लाई जा सके। हमारी माशी पॉलिसियों का मकसद इस वादे की तकमील है जो हमने नया पाकिस्तान बनाने के लिए अवाम से कर रखा है। हर गुजरते साल के साथ हम इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के करीब तर होते जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान हमारे रहनुमा असूल रहे हैं कि करप्शन का खात्मा किया जाए, सरकारी अदारों में ज़्यादा शफाफियत लाई जाए और एहतसाब का अमल जारी रखा जाए और हर सतह पर फैसला साजी के अमल में मेरिट पर अमल दरामद किया जाए। हमारा बुनियादी मकसद मईशत की बहाली और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को मुस्तहकम व मजबूत मईशत के रास्ते पर गामजन करना है, ताकि इन मनाजिल व मकासद को हासिल किया जा सके जिनका ख्वाब हमारे वतन अजीज़ के बानियों ने देखा था। हमें अपने अवाम की सलाहियतों पर पूरा एतमाद है और मतलूबा अहदाफ के हसूल के लिए हमें इनके ताउन की अशद ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ समाजी इंसाफ की फराहमी, मुआशरे के कमज़ोर और पसमानदा तबकात के हालात बेहतर करने के असूल पर कारबंद है और मुफलसी और गुर्बत में पिसे हुए हम वतनों के लिए काम करने का अज़म रखती है। यही हमारा विजन और रहनुमा असूल है। Which story can I tell? Which pain here can I say? Every day mine is the same for my share. भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में भारतीय फौज और हुकूमत की जानिब मजालिम जारी हैं। वहीं तुर्की की जानिब से मकबूजा वादी के अवाम पर होने वाले मजालिम की अक्कासी करता एक नगमा सोशल मीडिया पर मकबूल हो रहा है। तुर्की की जानिब से कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए I am कश्मीर नामी नगमा जारी किया गया। कश्मीर इज माय नेम सोशल मीडिया पर मकबूल हो रहा है। इस नगमे की वीडियो भारतीय मजालिम और कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की अक्कासी करती है। ये नगमा तुर्की के नगमा निगार और मौसीकार तिर्गे एवरेन ने लिखा है। अमेरिकन सिंगर डेला माइल्स ने गाया है। डेला माइल्स अपने इस नगमे में कश्मीरी अवाम और उन पर होने वाले मजालिम की दर्द भरी आवाज में अक्कासी करती दिखाई दे रही हैं।
Kashmir is my name. Oh, massacre again and again. Kashmir, death is my fame. Torture, endless torture. Kashmir is my name. Massacre again and again. Kashmir, death is my fame. Torture, endless torture. Oh, endless torture. Kashmir is my name. Don't you ever forget about me. Remember me. ये थी आज की अहम खबरें। मैं हूँ शाइस्ता जलील। देखते रहिए देसी टीवी USA।